Good morning, students of class 9. Today I will discuss about the uniform circular motion. Right? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट्स टू डिस्कस अबाउट व्हाट यू नो इन दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन क्या होता है? Why uniform circular motion is called accelerated motion, right? I also deal about that. And why uniform linear motion is not an accelerated motion? Besides that, we also shortly discuss the difference between the uniform circular motion and the uniform linear motion. And after that, we also know about the angular displacement, angular velocity, and relation V equal to omega r. Okay. So first of all, I want to define what is circular motion. When an object moves along a circular path, suppose that is the circular path, that is the center, है ना? So that if an object moves along the circular path, suppose that is the object, and that object moves along the circular path in anti-clockwise direction, right? That is the position of the object, that is object, है ना? So when an object moves along the circular path or circular track, then you can say that is circular motion, right? Now what is uniform circular motion? If the equal distance covered by the moving body in equal interval of time and along the circular path, then you can say that body moves with uniform circular motion. In another case, you can also think about that if the equal arc, that is arc, covered by the moving body in equal interval of time, then you can say that is uniform circular motion. Simply, so if an object moves along the circular path, then it is called uniform circular मोशन, राइट? अब आपको समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है. दूसरा क्वेश्चन है व्हाई यूनिफॉर्म लिनियर मोशन, व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलेरेटेड मोशन. तो अब यहाँ पे दो बात आपको ध्यान देना होगा. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स देयर स्पीड इज कांस्टेंट. सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यू कैन ऑल्सो से दैट the speed of the moving body remains constant, right? So 5 meter per second, 12 meter per second, 20 meter per second. The speed remains constant. But what about the velocity of the moving objects? Because when you say about the acceleration, so the rate of change of acceleration is called velocity, right? Here not the term speed is used. Here we talk about the acceleration, accelerated motion. That means there is change in velocity when the object moves along the circular path. तो आप याद रखेंगे शॉर्ट में, if an object moves in a circular path with uniform circular motion, right? With uniform circular motion, right? Then what happens? Their speed remains constant. Speed remains constant. But you can say that what about the direction of the moving objects? डायरेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है, राइट? डायरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? तो डायरेक्शन के लिए आप बता रहे हैं आपको हम कैसे आप डायरेक्शन को निकालेंगे. तो सपोज करो बॉडी ए पॉइंट पे है, इसके बाद बी पॉइंट पे है, इसके बाद सी पॉइंट पे है, इसके बाद मान लो डी पॉइंट पे है. ऐसे बॉडी मूव कर रहा है एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. इफ यू वांट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, at any point
फॉर दैट यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। टेंजेंट समझते होगे आप लोग, ये टेंजेंट हुआ, राइट? ये केवल एक पॉइंट पे टच करता है। अब टेंजेंट में आप डायरेक्शन ये हो सकता है, भी हो सकता है, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो डायरेक्शन हमारा क्या होगा, इधर होगा। यहाँ बी पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे, डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। सी पॉइंट डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। डी पे क्या होगा, ये होगा। डियर स्टूडेंट, आप समझिए, याद कीजिए क्या हो रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ देन देयर डायरेक्शन रेगुलरली चेंजेस at any instant or at any place of the circular path. So if the direction changes and speed का एक दूसरा डिफिनेशन बताया था आपको कि स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड, राइट? तो यहाँ पे वेलोसिटी की अगर बात करें उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर क्षण बदल रहा है। यहाँ देखो डायरेक्शन किधर था, ईस्ट में था, इधर क्या है, नॉर्थ में है। इधर क्या हो रहा है, फिर देखो वेस्ट में हो रहा है। इधर क्या देख रहे हो, साउथ में हो रहा है। ठीक, ड्यूरिंग द मोशन, सर्कुलर मोशन, you observe that the direction of the body, moving body, changes rapidly. So you can say that the velocity is variable. Velocity क्या है, तो speed remain constant, but velocity is variable. Velocity variable है। Variable मतलब क्या हो, velocity change हो रहा है। और आप क्या जानते हो, the rate of change of velocity is called acceleration. राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो उसका वेलोसिटी बदलते रहता है और हर क्षण बदलते रहता है ना? अब किस रेट से बदलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, राइट? सो सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, राइट? समझ में आ गया होगा आप लोग को कि जो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो ऐसे केसेस में वेलोसिटी चेंज करता रहता है, और वेलोसिटी के चेंज के कारण जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। और वो जब चेंज होगा तो फिर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, है ना? तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया कि व्हाई इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। अब हम एक नया क्वेश्चन फिर आ रहा है, आपके मन में आ सकता है विचार कि व्हाई यूनिफॉर्म लिनियर मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड मोशन सर, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म लिनियर मोशन है, उस इसमें क्यों नहीं हो रहा है? तो आप देखो यूनिफॉर्म में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे ए पॉइंट पे था और ये इस तरह से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। अब चूंकि यूनिफॉर्म लिनियर मोशन है इसमें क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, और लिनियर है तो लाइन हुआ, डायरेक्शन भी सेम है, राइट? तो आपका स्पीड भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। वैसे केसेस में जो u का वैल्यू होगा वही v का वैल्यू होगा, राइट? तो u और v आपका सेम आ जाएगा। तो u और v अगर सेम आएगा तो फॉर्मूला आपको क्या बताए हुए हैं, a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। तो दोनों सेम हो गया, v भी हो गया u, u माइनस यू बाय टी हो गया 0 बाय टी, क्या होगा, 0 हो गया, एक्सेशन कुछ होगा ही नहीं, राइट? सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स with uniform linear motion, then that is not will be the example of an accelerated motion. अब एक बात और जानिए, एक्सेलरेटेड मोशन जो यहाँ पे आपको मैंने बताया, राइट? अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा, इसमें अगर एक्सेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव कर रहा है वो मूव नहीं करेगा, राइट? अब आपको जानना चाहिए कि सर डायरेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्शन ऑफ द जो एक्सेशन होता है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेशन बोलते हैं, राइट? ये इस दिशा में होता है। आप देखिए ऑब्जेक्ट अगर इसको शिफ्ट कर दोगे, छोड़ दोगे यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा, ये शिफ्ट कर जाएगा। जैसे मान लो एक धागे से बांध लो कोई चीज, है ना, और उसको इस तरह से मूव करो तो क्या होगा, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। अब जो इसको उंगली से छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो शिफ्ट कर जाएगा, राइट? जैसे मान लो ये, राइट? देख लो, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से मूव कराते हैं, देखो ये क्या है, सर्कुलर मोशन है, लेकिन जो इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये शिफ्ट कर जाएगा।
स्वीप नहीं करता है, मूव क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे आपका लग रहा है सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है, और जो एक्सेशन प्रोड्यूस होता है बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सलेशन, और दोनों के बीच जो एंगल होता है 90 डिग्री, याद रखना, राइट। क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या टेंजेंशियली होता है, और ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट भी जो एंगल बनता है दैट विल बी 90 डिग्री, थ्योरम है ज्योमेट्री में, ठीक है। यह समझ में भी आपको आ गया होगा सेंटीपिटल एक्सलेशन क्या होता है। अब देखिए इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जान के हम इसको क्वेश्चन के रूप में आपको समझा रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आप इसी पे इस फिगर में समझ सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ए पॉइंट पे है, इसके बाद ये आ गया बी पॉइंट पे, यहाँ पे जो एंगल बना ये बना थीटा, राइट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है द एंगल फॉर्म बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल, है ना, व्हेन रीचेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो थीटा होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट, इक्वल टू थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, थीटा THETA, थीटा, राइट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर एंगल से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आ गया आपको? अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, आप याद करो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वहाँ जो वेलोसिटी की बात हम करते थे वो था लीनियर वेलोसिटी, राइट। तो वहाँ पर लीनियर लिखते नहीं थे, या लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो इन सिमिलर वे यू कैन से दैट द एंगुलर वेलोसिटी मीन्स व्हाट, बोलो। एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, किसे करते हैं ओमेगा से, इसको बोलते हैं ओमेगा, इक्वल टू क्या होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है देखो, हम लिख देते हैं, चलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी हो गया थीटा बाय टी, ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया थीटा बाय टी, इसमें आ गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक बात और बताते हैं आप, अगर ये पूरा एक राउंड मार देगा तो थीटा कितना होगा, सोचिए। अगर यहाँ पूरा एक राउंड मार देगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 360 डिग्री, होगा ना, इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, राइट बोलते हैं। और एक राउंड चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो देखो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा उस केस में, अगर एंगल होगा 2 पाई तो टाइम पीरियड होगा कैपिटल टी, कैपिटल जो टी से जोड़ करते हैं इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, और ये कोई भी टाइम हो सकता है, टाइम पीरियड। तो ओमेगा इक्वल टू क्या निकला आपका 2 पाई बाय टी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ओमेगा इक्वल 2 पाई बाय टी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है थीटा, ठीक है, और थीटा का एल/आर लिख सकते हो तुम। तो चलो ये हुआ, तो ये हो गया ओमेगा इक्वल 2 पाई बाय टी। अब हम आते हैं लास्ट में, टॉपिक के लास्ट पोर्शन में, हमको प्रूव करना है v इक्वल टू ओमेगा आर। v इक्वल ओमेगा आर कैसे प्रूव करेंगे, सो देखो इसके लिए देखो v क्या है, v है आपका लीनियर वेलोसिटी, ये क्या है लीनियर वेलोसिटी, v को हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा जान रहे हो एंगुलर वेलोसिटी, और r क्या हुआ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, राइट। और इसको अभी आप प्रूव करके आपको बताएंगे कि जो कैसे होता है। जैसे देखो ये मान लो, है ना, ये पहिया है दिखाई दे रहा है, एक व्हील है कार का या बाइक का, अगर इसको हम यहाँ पे मूव कराएं, मान लो यहाँ पे मूव कराते हैं, इसको ऐसे रखा हुआ है और इसमें इसको मूव कराते हैं, है ना, तो 1 साइकिल जब उससे कंप्लीट करेगा कि कितना आगे बढ़ेगा, समझा रहा है। अगर यहाँ पे एक साइन लगा दें और इसको एक मूव कराएं तो कितना आगे बढ़ेगा ये, बोलो। अगर यहाँ पे मान लो टिक लगा देते हैं, यहाँ पे चलो यहाँ पे इसका टिक लगा हुआ है, अब अगर इसको मूव कराएंगे इस तरह से, है ना, तो एक समय आएगा ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ टिक लगा देंगे,
इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, है ना, इसको समझने की जरूरत है। इसका वैल्यू कितना होगा, देखो पहिया का यहाँ ए लगाए थे, साइन लगाए थे, यहाँ आया तो इसका सर्किल का रेडियस कितना आर है, इसको आर माने तो कितना होगा, इसका जितना सरकमफ्रेंस होगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर, ये 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा और कितना 1 राउंड कंप्लीट करेगा। तो 1 राउंड कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होगा 2 पाई आर और टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू होगा टी इक्वल टू टाइम पीरियड। ये 2 पाई आर क्या हुआ, दैट इज डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस covered by the moving object in 1 round equal to होगा circumference of the circular path। ओके, ये हो गया 2 पाई आर। टाइम कितना हुआ, टाइम लगा आपका कैपिटल टी, 1 राउंड में जितना पूरा लगता है। अब हम निकालते हैं v का वैल्यू। तो v का वैल्यू क्या होता है, याद करो बेटा, क्या होता है वैल्यू, v का वैल्यू v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2 पाई आर बाय टी, और इसको क्या लिख सकते हो 2 पाई बाय टी इंटू आर। और यहाँ देखो 2 पाई बाय टी आया, ध्यान दो, और यहाँ भी आपका 2 पाई बाय टी था, है ना, इसको क्या ओमेगा लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो ओमेगा इंटू आर। तो फाइनली आपका क्या निकल गया, इंप्लाइज दैट v इक्वल टू ओमेगा आर। इस तरह से आपका ये आज पूरा कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, राइट। v इक्वल टू ओमेगा आर, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, व्हाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्साइटेड मोशन, व्हाई यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एन एक्साइटेड मोशन, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रिलेशन v इक्वल टू ओमेगा आर, एंगुलर एक्सेशन क्या होता है ना, वो भी बता दिया, उसका डायरेक्शन किधर होता है आपको मैंने ये भी बता दिया। ओके, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन लीनियर मोशन, तो व्हेन बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, एंड व्हेन बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, है ना, और इन सर्टेन डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। द डायरेक्शन, है ना, always changes during the circular motion, but in the case of linear motion there is no any change in direction of the motion, or uniform circular motion is an example of excited motion, while the non uniform linear motion is not an example of excited motion। ओके, हमें लगता है कि आप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और ये इसके बाद हम आपको फिर अगला, है ना, क्लास में पढ़ाएंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, सब चीज़ बता दिया आपको, दुमकल भी बना दिया, सारा डिस्कस कर दिया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना रिलेटेड दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड, है ना, अमॉन्ग्स देम। ओके, आप लोग मन से पढ़िए, अच्छा से तैयारी कीजिए, इसी के साथ, है ना, सभी को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।